Good morning students, hope you all are doing good. So in today's video we are going to start with our next chapter of macroeconomics, that is chapter number 3, national income and related aggregates. See, your chapter number 3 and chapter number 4 both are correlated with each other, as in chapter number 3 we will study about the theoretical concepts of national income, and in chapter 4 we'll discuss about the practical part of national income or the measurement of national income. So in this chapter we'll cover up the whole theoretical part which will be useful for doing the numerical part of chapter 4. So let's start with the first topic, that is the concept of national income, or what is national income. Basically, national income is the sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. Accounting year here means from the 1st April to 31st March, or the time period of an fiscal year. In that time period, country के अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, उन्होंने जितने भी फैक्टर इनकम्स के थ्रू, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है, उन सबका टोटल होती है नेशनल इनकम. दैट मीन्स इट स्टेट्स दैट national income includes the factor incomes only, and second thing, it includes the income of only the normal residents of a country. So basically it impacts only, it mainly focus only two concepts, that is the factor income and normal residents. So let's get deeper into these two concepts. One is the factor income and second is the normal residents. So what is factor incomes? As you have already studied in your previous chapter, that is chapter number 2, about the intersectoral flow or about the circular flow model, in which there are two sectors, basically the producing sector and the household sector. So both those sectors are interlinked with each other in one way or another. Like जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है, उनके फैक्टर्स को यूज करके वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता है. प्रोडक्शन अल्टीमेटली वो किसको सेल करता है? टू द हाउस होल्ड सेक्टर. एंड फैक्टर इनकम के बदले में लाइक द वेजेस, द रेंट, द इंटरेस्ट, द प्रॉफिट इन कंपैरिजन ऑफ लैंड, लेबर, the capital, the entrepreneurship skill, the producing sector provide that to the household sector. So both the sectors are dependent on one another. See, factor income are the payments made by the producing units. जितने भी फर्म्स होती हैं या प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं, वो दे विल यूज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक अगेन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये सब किनके पास अवेलेबल होती हैं? टू द हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर इन चीजों के ओनर्स होते हैं, एंड दे विल प्रोवाइड दीज थिंग्स और दीज फैक्टर्स टू द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. प्रोड्यूसिंग यूनिट्स उनको यूज करके प्रोडक्शन करती है, एंड अल्टीमेटली बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को उन सर्विसेज के बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट देती है, एंड दैट पेमेंट एक्ट एज द फैक्टर इनकम फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर. सी फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर इनकम्स कौन कौन सी होती हैं? द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स जब भी हम लेबर को, मैन पावर को यूज करते हैं तो बदले में हमें सैलरीज, वेजेस देनी पड़ती हैं. दैट इज नोन एज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बीइंग रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉयज ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. जब वो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के अंदर एज एन वर्कर्स, एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उन्हें रिटर्न में जो चीजें मिलती हैं, दैट इज नोन एज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सी द सेकेंड इज द रेंट received by the household for the use of their land by the producing unit. Again household sector के पास land है, they will provide it to the producing unit. Producing unit उन्हें use करके production करती है, and बदले में they will provide the rent to the households. Third is the interest, again received by the household for the use of their capital of the producing unit. Production sector के अंदर, फॉर्म्स के अंदर जो household sector है वो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करती हैं, एंड इन्वेस्टमेंट के बदले में, उनकी कैपिटल के बदले में उन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट फॉर द टाइम पीरियड बीइंग. Fourth is the profit that is received by the household for the use of their entrepreneurial skills by the producing unit. जो entrepreneurial skills को use करते हैं businesses को run up करने के लिए या producing units को चलाने के लिए, तो household sector को उनके बदले में क्या मिलता है? The profit. So जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली दीज फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स. इनको हम फैक्टर इनकम्स भी बोल सकते हैं एंड फैक्टर पेमेंट्स भी बोल सकते हैं. एंड जब भी हम नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, तो वहां पे जो हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए मेन 4 फैक्टर इनकम या पेमेंट्स ऐड करते हैं. दैट इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज रेंट, दैट इज इंटरेस्ट एंड दैट इज प्रॉफिट.
Next is how factor incomes are different from transfer income. This is a simple concept. Factor income हमने अब ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए हाउस होल्ड को पे बैक करते हैं, अगेन द वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. एंड व्हाट इज द ट्रांसफर इनकम? बेसिकली ट्रांसफर इनकम्स आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन और चैरिटी, जो हम किसी सर्विसेज के यूज के बदले में नहीं देते, बट जो हम अपनी विश से किसी की हेल्प करते हैं, किसी को चैरिटी, किसी को डोनेशन, ऐसी चीजों के अंदर जो चीजें देते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम होती है वो हमारी विल या विश से होती हैं, हम किसी भी सर्विसेज के बदले में पैसा नहीं दे रहे. और जो फैक्टर इनकम्स होती हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने या फिर सर्विसेज देने के बदले में रिटर्न के अंदर मिलती हैं. तो जो फैक्टर इनकम होती हैं वो अर्नड होती हैं. वाई अर्नड? बिकॉज हम वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक लैंड यूजेज, लेबर, कैपिटल, ऐसी चीजें. बट ट्रांसफर इनकम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. दे आर ओनली bilateral साइडेड और वन साइडेड. दैट मीन्स वन साइडेड मीन्स हम सिर्फ उसको पास ऑन कर रहे हैं और बदले में हम वहां से कुछ भी यूजेज या फायदा नहीं ले रहे. तो ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट अर्नड एज रिवॉर्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज के बदले में ये नहीं मिलती. तो इनको हम नेशनल इनकम कंप्यूट करने के टाइम पे नहीं लेते. तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ट्रांसफर इनकम्स मेंशन हो तो उनको हम कैलकुलेशन के अंदर नोट डाउन नहीं करेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉर्मल रेजिडेंस. सी नेशनल इनकम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. दो कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं. वन इज द फैक्टर इनकम्स एंड सेकंड इज अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. सो हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री? नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न, वो उस कंट्री में रह रहा हो, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, और उसके जो प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं या उसका जो इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री के अंदर हो. See, it states that a person residing in a country for a period of 1 year or more, जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह रहा है उस कंट्री के अंदर, उसे हम ऑर्डिनरी रिजाइडिंग बोलते हैं. एंड दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. हो सकता है वो उस कंट्री का सिटीजन हो सकता है वो कंट्री का सिटीजन ना हो. सेकेंड इज अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री. दैट मीन्स जो भी पर्सन है उसका उस कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि जब भी वो मतलब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो उस कंट्री के अंदर करे, लाइक कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के अंदर, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ कंजप्शन, वो उसी कंट्री से रिलेटेड हो. सो इन शॉर्ट, नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ उसी इनकम को इंक्लूड किया जाता है विच इज बीइंग अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, एंड इट डज नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स. जो उस कंट्री के रहने वाले नहीं हैं उनकी इनकम इंक्लूडेड नहीं होती, इवन व्हेन दे हैपन टू बी द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. जब वो सिटीजन्स होते हैं तो भी. सी, I'm providing with a difference of normal resident and non-residents in the notes, and let's just discuss simply 1 or 2 points between the differentiation. See, Indians working in foreign embassies in India, that means normal residents कौन होते हैं? इंडिया के अंदर जो फॉरेन एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वहां पे इंडिया की कोई एम्बेसी है और वहां पे इंडिया के लोग जब काम करते हैं, दैट इज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. एंड नॉन रेजिडेंट्स व्हेन फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान. कनाडा एंड जापान के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी है, वहां पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं दे आर द फॉरेनर्स, वहां पे फॉरेनर काम कर रहे हैं, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बोलेंगे. सिंपली इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया. WHO की एक ब्रांच इंडिया के अंदर है, वहां पे इंडियन लोग ही काम कर रहे हैं, तो दे आर सेड टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. एंड सेकंड थिंग, फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया. इंडिया के अंदर WHO की ब्रांच है बट वहां पे फॉरेन के लोग काम कर रहे हैं, तो दे आर सेड टू बी द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. सो हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन द normal residents and non-residents of India. So this is all about the today's video, basically with the concept of national income, factor income and normal residents. Thank you students.